Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रेम सखा प्रभु और सर्वरूपा माता जी फॉर नाइस कीर्तन। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम का कैंटो 3 चैप्टर 16 और श्लोका नंबर 11 का श्लोका मतलब सेवा दिया गया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी के ब्लेसिंग से कि प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं अच्छे से जो मैंने सुना है भक्तों से वो मैं यहाँ पे अच्छे से बोल पाऊँ। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमकृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायसे भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयं भगवते उत्तमश्लोके भक्तिभावति न स्थितिम्। तो अभी श्लोका मैं रीड करती हूँ। हे ब्रह्माणमायिदिया कृषिपितो अर्चयत् से तुष्यं दृढस्मिता सुदोक्षिता पद्मावृक्त वन्यानुरागकलयाकमज मजवद्गृह्णन्त सम्बोधयन्ते अहम् इवाहम् उपार्थः तैः। तो ट्रांसलेशन मैं रीड करती हूँ। On the other hand, the captive my heart who are gladdened in heart and who their lotus face enlightened by nectar smile respect the Brahmanas even through the Brahmanas utter harsh words. They look upon the Brahmanas as my own self and specify them by praising them in loving word. Even as a son would appears in anger, father or I am specifying you। तो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में मैं थोड़ा सा ऐसा हिंदी में बताने का प्रयास करती हूँ कि प्रभुपाद इस ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं कि जो भक्त होता है ना वो ब्राह्मण, और अगर उनको कोई श्राप भी देता है तो उनको वो मतलब रिवर्ट नहीं करता है। वो एकदम अच्छे से उनको स्माइल दे के अपने फेस पे हमेशा हम्बल रह के वो उनको ये मतलब उनका स्वागत ही करता है। अगर कोई उनको डिसरिस्पेक्ट मतलब कर रहा है कोई ब्राह्मण तो भी, जैसे कि एक सन फादर है वो अपने बच्चे को लाइक डांटता है तो सन कैसा उसको उनको स्माइल दे के बस उनको साइड देखता है। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत पसंद है। तो मैं purport पढ़ती हूँ, श्रीला प्रभुपाद purport. It, it has been observed in many instead in the Vedic scripture that when the Brahmanas or Vaishnavas cure someone in an anger mood, the person who's cured does not take it upon himself to treat the Brahmanas or Vaishnavas in the same way. There are many examples of this. For instance, the son of Kauravas, when cured by the great sage Narada, did not seek revenge in the same harsh way, but submitted. Here also the Jay and Vijay were cured by the four Kumars. They did not become harsh towards them, rather they submitted. That should be the way of treating Brahmanas and Vaishnavas. One may sometimes be faced with a grievous situation created by the Brahman, but instead of meeting him with a similar mood, one should try to specify him with a smiling face and mild treatment. Brahmanas and Vaishnavas should be accepted as a earthly representative of the Narayana. Nowadays, some foolish persons, some manufacturer the term Daridra Narayana, indicating that the poor man should be accepted as the representative of Narayana. But in Vedic literature, we do not find that poor man should be treated as a representative of the Narayana. Of course, those who are unprotected, as mentioned there,
but the definition of the pharaoh is clear from the Shastra. The poor man should not be unprotected, but the Brahmana should specifically be treated as the representative of the Narayana and should be worshipped like him. It is specifically said that the specify the Brahmana one face should be lotus-like. A lotus-like face is exhibited when one is adored with love and affection in respect. The example of the father being angry at the son and the son trying to specify the face with smiling and sweet word in the very appropriation. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद मतलब पर्पट में हमको इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणा है ना वो कभी भी जो वैष्णवों का मतलब भक्त जो एक है वो ब्राह्मण और वैष्णवों का कभी भी निंदा नहीं करते, मतलब उनका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। इवन वो हमको डांट भी दे तो हम उनको रिवर्ट, मतलब जो भक्त होते हैं भगवान के प्योर और शुद्ध भक्त, वो उनको मतलब उनसे कभी रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, उनकी कभी निंदा नहीं करते। वो हमेशा अपनी अच्छी स्माइल देके वो जो भी कहते हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे नारद मुनि का भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जब तो श्राप दिया था कि आप श्राप दिया था कि आप एक दो विच बन जाओगे। मतलब अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव हमें श्राप भी दे रहे हैं ना, तो बोलते हैं ना कि अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव हमारी तारीफ करते हैं तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत अच्छा होता है। बट अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव हमें श्राप भी दे रहा है ना, तो वो उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भगवान हमें स्वयं प्राप्त होते। जैसे नारद मुनि ने कौरवों को श्राप दिया, तो भगवान खुद, वो दामोदर लीला में देखते हैं कि भगवान खुद बंधे हैं, बट वो उनको श्राप दिया था तो उनको वो मतलब मुक्त करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जय और विजय को भी चार कुमार ने श्राप दिया, तो वहाँ पे भगवान स्वयं आए उनको दर्शन देने के लिए। और यहाँ पे मतलब बताया, मतलब पर्पट में इसमें प्रभुपाद ने बताया कि लाइक कुछ लोग ऐसे मतलब होते हैं पुलिस, जो भगवान कैसे, यहाँ पे प्रभुपाद इस पर्पट में बता रहे कि जो भगवान के प्योर भक्त है ना वो भगवान के समान ही रहते हैं, उनके जैसा ही उनका वर्शिप होना चाहिए। बट जो कुछ पुलिस लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, तो मुझे भी भगवान के इतना इक्वल ही मतलब मिलना चाहिए सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें ऐसा ही प्रभुपाद बता रहे। तो मैं प्रेयर से स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिरामरस्य ज्ञानजानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। तो मैं यहाँ पे प्रयास करती हूँ, ये जो प्रभुपाद ने इतना अच्छा पर्पट है इसमें बताया है, और मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लास देखे थे, तो मैं वही यहाँ पे सेम बताने का प्रयास करती हूँ। अगर कुछ उससे बताने में अगर मिस्टेक हो गया तो वो भी मेरा मिस्टेक रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये श्लोक के लिए मैं यहाँ पे हिज ग्रेस अमला कृष्णा प्रभु जी का क्लास सुन रही थी। तो जैसे अभी ये चल रहा है कि जो जय और विजय है, उन्होंने वो जो चार कुमार है वो भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। ऑलमोस्ट उन्होंने 6 डोर पार कर लिए थे, और अभी हम ये क्लासेस कंटिन्यूसली सुनते भी आ रहे हैं। तो उन्होंने वो जो 7वां डोर है वहां पे उन्होंने उनको रोक लिया। तो चार कुमार ने जय विजय को श्राप दिया, मतलब श्राप दिया कि मतलब आप 3 जन्म, मतलब आपको राक्षस रूप में आना पड़ेगा, तभी ये जाके ये श्राप होगा। तो वहां पे भगवान आ जाते हैं, और फिर भगवान चार कुमार को बोलते हैं कि हाँ आपने मतलब बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनको शांत करवाना था भावपूर्वक ही। तो उन्होंने तो इसी बहाने मतलब
मैं प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे, बता रहे थे ऐसे कि जो वैष्णव और जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो मतलब बहुत मर्सीफुल होते हैं, वो भगवान के स्वरूप ही होते हैं, भगवान के जैसे। मतलब अगर हमें वो कोई ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमारा हमारा लकी टाइम है वो। बट अगर वो हमें कोई श्राप दे रहे हैं ना, तो वो उससे भी अच्छा है। लाइक अगर उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो, जैसे नारद मुनि का प्रभुपाद ने इस पॉपर्ट में भी लिखा है कि उन्होंने कौरवों को श्राप दिया, बट श्राप से क्या हो रहा है कि हमें भगवान के दर्शन हो रहे, तो ये श्राप थोड़ी ना हो, ये तो हमारे लिए बोलते हैं ना कि एक वर्शिप हुआ कि हम भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं एकदम अच्छे से, तो फिर वो एक अच्छा हुआ ना, मतलब श्राप मिला तो भी। जो वैष्णव और ब्राह्मण से हमें श्राप मिलता है ना, वो हमें बहुत मतलब भगवान के और पास ले जाता है, तो हमें वो खुशी खुशी मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिना कुछ किए, और हमारे फेस पे एक अच्छी स्माइल होना चाहिए कि मैंने आपने मुझे जो भी श्राप दिया वो मुझे एक्सेप्ट है। तो 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 यहाँ पे नारद मुनि का भी एग्जाम्पल है कि नारद मुनि ने जो कुबेर के पुत्रों को, नल कुबेर और मुनि कुबेर को वृक्ष बनने का दिया कि आप वृक्ष बनोगे, और वो भी नंद बाबा के वो आंगन में ही वो वृक्ष रहेगा, बाहर साइड में रहेगा, तो भगवान स्वयं आके आपको मुक्त करेंगे। और फिर एक शाप प्रभु जी बता रहे थे कि वो अगस्त्य का जो इंद्रदेव को शाप दिया है कि आप मगरमच्छ बनोगे, और गजेंद्र का भी जो हाथी का थे, तो उनको वो गजेंद्र बने थे, तो मतलब वो भी भगवान का ही जो भी शाप मिला है। प्रभु जी बोल रहे थे कि वो हमें मतलब एक एज अ ब्लेसिंग लेना चाहिए कि हमें भगवान का उससे दर्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे फिर एक मैं श्लोका ये श्रीमद् भागवत का ही है, मैं वो श्लोका कोट करती हूँ कि यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्लोका नंबर 10, कैंटो 10 और चैप्टर 14 श्लोका नंबर 8 है। तत्ते नु तत्ते नुकंपंसु समीक्षां नमो गजेन्द्र इवत्मा एतं विपाकम् हृदयेज्वापुभिर्दन्तं नमस्ते जीवेतो मुक्तिपदे पदेशा दया भक्त। तो इसमें ये ट्रांसलेशन में जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि oh my dear Lord, one who easily wait for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeed, and offering an you respectful obeisance with this his heart, words and body is surely life for liberation, it's become the right to come। तो यहाँ पे ये पॉपट में भी बताया है कि जो प्रभुपाद बता रहे इस श्लोका में कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो उनके ऊपर उनकी बहुत मर्सी होती है, तो उन्हें जो भी अगर कुछ किसी भी वो बोलते हैं ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन्हें हमेशा एकदम एक स्थिर होके रहना चाहिए, उनको कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो ये एक श्लोक इसमें कोट किया था। और यहाँ पे एक समीक ऋषि का भी प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि समीक ऋषि जो सिंधी के पिता हैं, उन्होंने भी सिंधी ने जो परीक्षित महाराज को श्राप दिया था। तो परीक्षित महाराज तो कितने बड़े मतलब है, भक्त है भगवान के, तो वो भी चाहते तो उनको वापस से श्राप दे सकते थे, बट जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी ब्राह्मण और जो वैष्णव है ना उनका बोलते हैं ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। उन्होंने मतलब भावपूर्ण एकदम अच्छे से उसको वो एक्सेप्ट कर लिया। जो शमिक ऋषि थे ना, वो बहुत चिंता में थे कि मेरे पुत्र ने तो श्राप दे दिया, बट वो एक साइड से खुश भी थे कि जो परीक्षित महाराज है ना, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। तो भगवान के यहाँ पे डिवोटी के बारे में मतलब प्रभुपाद इसमें बता रहे थे
तो एक और श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, चैंटो 1 चैप्टर 18 और श्लोका नंबर 48 है। तिराक्सक्ता विभ्राब्लतम सप्तकृष्टा अतापि नश्य तत्परिपूर्तवन्ति तद्भक्त प्रवादोऽपि हि। The devotee of the Lord show forbearing that even though they are defamed, cheated, used, disversed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to revenge themselves. तो भगवान ने इस श्लोका में भगवान खुद भी बता रहे कि जो उनका प्योर भक्त होता है ना, वो उनको कितना भी परेशानी आता है, मतलब कोई अगर उनको हार्म करे, उनको कोई चीट करे, उनको कोई डिस्टर्ब करे, इवन उनको कोई किल भी कर दे, उनको मार भी दे, तो भी वो रिवेंज का भाव उनके मन में आता ही नहीं है। मतलब वो एकदम जो भी उनके साथ ऐसा करता है, वो एकदम भावपूर्वक उनको उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, इवन प्रभु जी बता रहे थे कि ये तो भगवान के भक्तों के बारे में हो गया कि जो उनको शाप देते हैं, उन भगवान के भक्त ऐसे हैं कि भगवान के भक्त वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इवन भगवान को भी शाप दिया गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था कि 500 ईयर एगो, मतलब पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे एक प्रेम नाम का कीर्तन हो रहा था। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि राधा कृष्ण का भी जो रासलीला होता है, उसके अंदर भी सभी को अलाउ नहीं है, सब कोई भी भगवान के उस रास में जा नहीं सकता। जो एकदम प्योर होता है, जो भगवान के एकदम प्योर भक्त होते हैं, वही उनको ही सिर्फ अलाउ है, किसी को भी अलाउ नहीं है। तो इसमें भी चैतन्य महाप्रभु का भी वहाँ पे एक कौन सा गाँव, नवद्वीप में, वहाँ पे भी एक प्रेम नाम का कीर्तन हो रहा था। तो वहाँ पे एक ये थे ब्राह्मण थे, और वो वहाँ के बहुत फेमस ब्राह्मण थे, और ना उनसे बहुत सब डरते भी थे। लाइक वो ना अगर उनसे थोड़ा भी कोई उनका डिसरिस्पेक्ट कर देना, तो वो तुरंत श्राप दे देते। बोलते ना कि मैं तुरंत श्राप, वो फेमस हो जाते कि ये ब्राह्मण है, अगर इनसे थोड़ा सा भी अगर कुछ भी हुआ तो ये तुरंत श्राप दे देंगे। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का ये कीर्तन हो रहा था। तो वो जो ब्राह्मण थे ना, उनको उस कीर्तन में जाने का मतलब बहुत मन था कि मुझे इस कीर्तन को अटेंड करना है, बट वो उस कीर्तन में जा नहीं पाए, मतलब क्योंकि उसका दरवाजा, तो बोलते हैं कि गोलक धाम का भी जो डोर है ना, प्रभु जी बताए थे वहाँ उसका एग्जाम्पल, जो डोर है ना, उस डोर में ना बाहर के साइड, वो जो डोर में कड़ी रहता है ना, वो बाहर के साइड नहीं है, वो अंदर के साइड ही रहता है। मतलब कोई भी बाहर से खोल के अंदर नहीं जा सकता। जब तक अंदर से कोई आके खोलेगा नहीं, तब तक वो आप गोलक धाम वृंदावन में इंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये जो कीर्तन हो रहा था, प्रेम कीर्तन, उसमें कोई भी बाहर से नहीं जा सकता जब तक कोई अंदर से आके उनको लेके जाए ना। तो वो जो ब्राह्मण थे ना, वो निराश होके चले गए। तो उसके दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु गंगा किनारे ना स्नान कर रहे थे, तो वो वहां पे गए और उनको ना शाप दिया कि मुझे कीर्तन में आने का बहुत मन था, बट मैं कीर्तन में आ नहीं पाया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें ये सांसारिक जो सुख है ना, वो सब नहीं मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ना मतलब वहां पे नृत्य करने लगे, वो डांस करने लगे कि अरे यहाँ पे वैसे भी संसार में कोई खुश नहीं है, तो आपने मतलब मुझे बहुत अच्छा किया कि ये शाप दे दिया कि मैं ये सब सांसारिक जो सुख है वो मैं नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी वो सन्यासी हो गए, और सब जगह जगह जाके उन्होंने ये प्रचार किया, जो हम आज देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो चल रहा है कीर्तन, वो सब हम उनसे ही सीख रहे हैं, महाप्रभु से ही। तो मतलब इवन वो ब्राह्मण जो थे इतने फेमस थे, इतने बड़े थे, तो उन्होंने महाप्रभु को श्राप दे दिया। तो बोलते हैं ना, महाप्रभु भी इतने खुश हो गए, वो वहां पे नृत्य करने लगे, और वो खुश होके उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हुआ आपने मुझे ये श्राप दिया। हम्म। तो और फिर वहां से तभी से महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने लगे, हर देश में जाके, सब जगह जाके। और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि इवन जब भगवान को वो ब्राह्मण जो है ना वो श्राप दे रहे थे ना, तो अगर वो कोई गलती से सुन लेगा, मतलब अगर वो ब्राह्मण जो महाप्रभु को श्राप दे रहा था, तो कोई अगर व्यक्ति उस श्राप को सुन ले रहा है ना, तो अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोई श्राप है ना,
तो वो श्राप भी उस व्यक्ति के ऊपर से मुक्त हो जाएगा। और तो प्रभु जी एक स्टोरी बता रहे थे कि जैसे अभी ये जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो लोग कैसे मतलब कैसे किसी को डायरेक्टली आंसर करते, कोई अगर कुछ बोलता है तो वो जैसे लाइक दो पड़ोसी थे और एक वॉल बीच में था, मतलब ऐसे आजू बाजू ये लोग रहते थे, और एक एक जो दूसरा वाला पड़ोसी था ना, उनका एक इमली का पेड़ था। तो वो दूसरे वाले के वो पेड़ ना उनके आंगन में उनका ये सब पत्तियां गिर रही थी, तो वो बहुत परेशान थे कि अभी मैं ये रोज रोज मुझे साफ करना पड़ता है, रोज ये पत्तियां गिरती है, फिर इमली भी गिरती है। तो मैं अगर उसको बोलूंगा कि इसको कट कर दे, तो वो तो मुझसे ही लड़ाई करने लगा कि 500 रुपए कौन खर्च करके इसको लकड़हारे को बुलाएगा और उसको कट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पड़ोसी थे उन्होंने इमली का चटनी बनाया, और एक ऐसे बड़े से जार में उन्होंने चटनी बनाया, और वो जिसके पास इमली का जिसका वृक्ष था ना, उनको जाके दिया कि ये मैंने, दिस इज फॉर यू, ये मैंने आपके लिए लाया। तो वो बहुत खुश हो गए कि अरे इतने बड़े जार में क्या है, तो बोलते ये इमली का चटनी है। तो बोलते अरे थैंक यू, मैंने तो आपको कभी कुछ दिया ही नहीं और आपने मुझे इतना सारा चटनी दिया, वो भी इमली का। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये जो आपका इमली का वृक्ष है ना, यही जो हमारे आंगन में ना लास्ट 6 महीने से गिर रहा था, तो मैंने उसको सारी इमली को जमा करके ये थोड़ी सी चटनी बनाई है। बोलते अरे इतनी थोड़ी सी, इतना बड़े जार में इतना मुझे दिया है, तो इसके पास कितना सारा होगा। तो फिर बोलते हैं ना कि मनुष्य का है वो तुरंत इसमें अहंकार हो जाता है कि मेरा सामान है, ये कैसे यूज कर रहा है। तो उसने इमिडिएटली एक लकड़हारे को कॉल किया कि ये पूरा इमली का वृक्ष कट कर दो, इसके पास कुछ भी मेरा मतलब मेरा सामान मतलब बेनिफिट नहीं जाना चाहिए। तो मतलब आजकल के लोग हैं वो कैसे, इवन हम उसको तो वो दूसरा वाला भी खुश हो गया कि चलो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गया, अभी वो खुद से कट कर दिया। मतलब हम एक दूसरे से इतना जलते हैं, इतना हमारे अंदर ईगो है कि उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और उन्होंने कट भी कर दिया। तो मतलब वो प्रभु ने इतना मतलब अच्छे से बताया कि देखो आजकल के लोगों ऐसा ऐसा मतलब है। और फिर वही ये भी समझ रहे हैं कि हम जो ये पाप कर रहे हैं, हम जो जितना भी हमारे मन में जो अहंकार है, दूसरों को लेके ईगो है, जो भी है, और हम भगवान के समान है, मतलब हम भगवान के अंश है, तो हम भगवान के समान है। तो ये एक स्टोरी मुझे बताया प्रभु ने। और फिर एक ना जो भक्तों का मतलब अगर जैसे हम अभी क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से प्रभु ने बताया था, जैसे कि हाँ कल अभी अनिरुद्ध प्रभु ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, करेक्शन, मतलब हमें करेक्ट करने के लिए कोई 3 चीजों का प्रभु ने बताया था कि हमें एक करेक्शन जो हमारे लिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो हमारे ऊपर ना एक वैष्णव का हाथ, एक बड़े सीनियर डिवोटी का हाथ हमेशा होना ही चाहिए, जो हमें हमेशा करेक्ट करे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इवन अगर वो हमें करेक्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो हमारे हम तो समझ रहे कि मैं तो एकदम बोलते हैं ना कि हम एकदम महान है, हम एकदम हमारे मिस्टेक ही नहीं है। बट हमें फिर भी हमेशा अगर कोई हमारा सीनियर है, हमें उनसे हमेशा पूछना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे याद है कि जब भी मैं हमारी गुरु महाराज को मैंने मेल करने के लिए, मैं हमेशा गोपी मन प्रभु से बोलती थी कि प्रभु मैं क्या लिखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं आज महाराज से मिलने जा रही हूँ। तो प्रभु मुझे हमेशा गाइडेंस देते थे कि तुम जाके ना बस महाराज को पूछना कि महाराज मेरे लिए क्या मतलब आपका बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शन है, मैं क्या आगे फॉलो करूँ। तो जैसे हम अपने महाराज को जब भी मिलते हैं, इवन वो बार बार वो एक ही चीज रिपीट करे कि प्रभुपाद का बुक पढ़ो, मेरा बुक पढ़ो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो। हमें पता है कि महाराज वही बोलेंगे, बट फिर भी हमारे कैसा लगता है, हमारे गुरु महाराज से हम जाके हमेशा वही इंस्ट्रक्शन लेते, बट हमें हमेशा यही हमारे जो सीनियर होते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए। हमें कभी भी खुद राइट मतलब हम सब सही कर रहे हैं, हमें ऐसा कभी फील ही नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक गाड़ी का मतलब 4 व्हीलर जो होता है ना, कार, उसका एग्जाम्पल दिए। तो कार में कैसा 2 साइड मिरर होते हैं और एक बीच में मिड का मिरर होता है। तो साइड मिरर से हम साइड साइड का देख सकते हैं, और मिड मिरर से अगर हम मतलब पीछे का देख सकते हैं, अगर हम कहीं पार्क कर रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, पीछे साइड गाड़ी कर रहे हैं। तो वो जो होता है कुछ ऐसे हिडन जगह होती है जिसमें हम ये तीनों मिरर से नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारी मुंडी पीछे करते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि हम वो तीनों मिरर से उसको देख नहीं सकते। तो और जो
कार के बाहर जो व्यक्ति खड़ा रहता है ना, वो हमारे जो भक्त शुद्ध भक्त है ना, वो होते हैं। तो वो कैसे हमें गाइड करते हैं कि नहीं नहीं, आप थोड़ा ये लेफ्ट लीजिए, थोड़ा आप राइट लीजिए, तो आपका प्रॉपर मतलब पार्क हो जाएगा, गाड़ी कार पार्क हो जाएगा। तो हमें हमेशा और पहले तो मुझे बता रहे थे कि वो पहले वेट करता है, मतलब जो हमारे बाहर जो खड़े रहते हैं ना, वो वेट करते हैं कि क्या पता इसको सब पता है, इसके साइड में मिरर है और सामने भी मिरर है, तो ये प्रॉपर मतलब अपनी गाड़ी को पार्क कर देगा। पहले हम वो वेट करते हैं कि ये समझ जाएगा, सी इसको पता है। बट जब अगर देखते हैं कि उनको नहीं पता रहता है, तो वो हमें बताते हैं कि नहीं, आप लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, तो आपका गाड़ी एकदम प्रॉपर वे से पास होगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये वैष्णव है और ये ब्राह्मण है, तो हमें उनसे हमेशा इंस्ट्रक्शन लेते रहना चाहिए। पहले वो वेट करते हैं कि नहीं, इनको तो सब कुछ पता है, तो ये सीख जाएंगे खुद से ही। अगर कुछ भी गलती किया है तो ये प्रॉपर वे में आ जाएंगे। बट अगर वो हमें नहीं भी बता रहे हैं ना कुछ, कि नहीं आप ये बात पे चलिए, तो हमें उनसे खुद ही पूछना चाहिए। हमें हमेशा अपने में मिस्टेक देख के उनसे करेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि प्रभु जी, मैं ये भक्ति तो कर रही हूँ, तो आप मुझे कुछ बताइए कि मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ, मैं उसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ये हमें हमेशा अपने मतलब जो सीनियर डिवोटी है ना, उनसे पूछना चाहिए और उसको हमेशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि नहीं, मुझे मतलब सब कुछ आ गया है, मैं तो अभी 3 साल से या 4 साल से भक्त बन गई हूँ, तो मुझे नॉर्मल सब पता हो गया है। तो यहाँ पे एक मैं अर्ग्रेस निताई सेवनी माता जी का भी एक क्लास मैंने सुना। तो तो माता जी का मैंने क्लास सुना, तो ये सॉरी अगर मैं कुछ इसमें गलत किसी को कुछ लगे, ये ना मोस्ट ऑफ माता जी के ऊपर ही है, तो इससे रिलेटेड था, तो इसके लिए मैंने ये माता जी का सुना। मतलब हमको भक्तों की निंदा के ऊपर है ये टॉपिक, तो भक्तों की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा माता जी ने मतलब वो क्लास में बता रही थी कि वो नॉर्मली अगर हम कुछ भी अपराध करते हैं या फिर कुछ भी भक्तों का अगर कुछ डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें कैसे चार बोलते थे, वो माता जी बता रही थी कि चार चीजें हमारे ऊपर हो सकती है। या तो हमें हमारे हेल्थ में इशू हो सकता है, या तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या तो हमें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या तो हमें हमें हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है अगर हम भक्तों की निंदा करते हैं। अगर भक्तों की लाइक वो बोलते हैं ना चुगली टाइप, अगर कुछ हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो ये हमारे ऊपर या तो मीन्स, और हम इन चारों में से हमको एक चीज हमारे ऊपर ऐसा हो सकता है। तो माता जी बोल रहे थे कि वो ना नॉर्मली फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी, कोयम्बतूर से वो आ रही थी। तो नॉर्मल बोलते हैं कि हम फ्लाइट में क्या कर सकते हैं, या तो हम भागवतम पढ़ते हैं, या तो हम जापा करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो एक जो फ्लाइट के आगे ऐसा एक छोटा सा बैग रहता है, तो उसमें ऐसा न्यूज़पेपर रखा रहता है। तो माता जी वहाँ पे एक न्यूज़पेपर था, तो माता जी बहुत क्यूरियस हो गए, और उसमें एक ना स्वामी जी का फोटो था, तो इसके लिए उनका ना ऐसा अट्रैक्शन हो गया उस स्वामी जी के ऊपर। तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर निकाला और उसमें पढ़ा। तो उस न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा था, वो उन्होंने पता नहीं, वो मतलब माता जी बता रही थी, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या, कौन से कहाँ से आया है, कैसा है। बट वो जो उसमें वो जो लिखा हुआ था ना भक्तों की निंदा के बारे में, वो माता जी ने बोला कि वो इतना अच्छा था ना, तो मैं वो थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करती हूँ। तो वो नारायण शास्त्र था। तो माता जी बोल रहे थे कि नारायण शास्त्र हमने भी नहीं सुना है, पता नहीं वो कहाँ से है, कैसा है। बट उससे अगर हमको किसी चीज से बेनिफिट हो रहा है, तो वो हमें जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए, और उसको हमको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो माता जी बता रहे थे कि वो लोग ना जो नारायण शास्त्र वाले थे ना, उनका एक कमिटी था लाइक। तो वो जो भक्त होते हैं, मतलब जो होते हैं ना लोग, जैसे किसी को नी पेन होता है, किसी को बहुत सारे बोलते हैं ना, हमको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या कोई मतलब आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, या फिर किसी कोई है कैसा है, मतलब सबसे उनसे वो ना पूछते हैं कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है, किसी को आपसे किसी को प्रॉब्लम है, या आप किसी से कुछ मतलब किसी का कुछ बोलते हैं, तो ऐसा वो पूछते हैं। और फिर ना उस पे वो 6 मंथ मतलब बोलते हैं ना रिसर्च किया उन्होंने उस पे, और फिर आपने उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये मत कीजिए, और फिर उसमें ना वो इम्प्रूवमेंट आया। तो माता जी ने दो मतलब माता जी लोगों का एग्जाम्पल दिया, तो मैं वो बताती हूँ यहाँ पे। तो लाइक ए और बी माता जी है जो डिस्कशन कर रही है,
और एक माता जी सी है जो यहाँ पे है नहीं, इंडिया में भी नहीं है, मतलब वो बहुत दूर है, या फिर समझ सकते हैं हम लोग यूएस में है, सी है। तो जो ए और बी माता जी है ना, वो सी वाली माता जी का बात कर रही है। तो बोल रही है ये वैसी, मतलब हम बोलते हैं ना कि ये ऐसी है, वो मोस्ट ऑफ माता जी बोल रहे थे कि वो लेडीज में मतलब वो होता है कि वो लोग ऐसा बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो जैसे हम, मैं, ए और बी है, वो सी माता जी की बात कर रहे हैं कि अरे वो तो ऐसी है, ऐसे है, इनका ये प्रॉब्लम है, वो है, मतलब वो ऐसे ही करती है। तो बोलते हैं ना, अगर हम किसी का, बोलते हैं ना, कोई अगर बुरा भी है, अगर हम उसकी बातें भी कर रहे हैं, तो जो वो सी माता जी है ना, उनके जो भी पाप है ना, वो सब कुछ वो ए माता जी थी जिसने बात करना स्टार्ट किया ना बी माता जी के साथ, वो पूरे पाप उनके टोकरी का सब अपने सर पे आ जाता है। मतलब उनका पूरा पाप जो बोल रहे हैं उनके बारे में, उनके ऊपर आ जाएगा। तो उनके ऊपर आ गया वो। और जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो बी माता जी है ना, वो एक्नॉलेज करें, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसे ही बोलते, हम बोलते हैं ना कुछ तो कुछ, उनको एक्नॉलेज कर दे कि हाँ आप प्रॉपर बोल रहे हो। तो हाँ, मतलब बोलने से भी ना, वो जो सी माता जी का हम लोग टॉपिक निकाला है ना, उनका भी वो जो जो बचा हुआ पाप रहता है ना, वो बी वाली माता जी के ऊपर भी आ जाता है। और बचे अभी वो बी माता जी, वो तो सिर्फ सुन रही थी, बट उनको भी इनडायरेक्टली सब कुछ उनका पाप मिल गया। तो फिर उनके माइंड में आता है, मतलब वो उनको ऐसा बोलते नहीं है, बट उनके माइंड में आता है, ये इतना उनकी बुराई कर रहे हैं, मतलब वो सी माता जी की, तो ये भी तो वैसी ही होगी। मतलब अपने मन में आता है ना, उनके ख्याल में कि ये भी तो वैसी ही होगी। तो मतलब इवन उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने जो सिर्फ उनके बारे में सोचा कि ये ऐसी ही होगी, इसलिए तो वो उनकी उतनी बुराई कर रहे। तो जो ए माता जी सब बोल रही थी ना, उनका पाप भी बी माता जी के ऊपर मतलब उनके जो पाप था वो भी उनके ऊपर चला गया, और जो सी क्या तो गया वो गया। मतलब दोनों साइड से वो जो बी माता जी ने सब कुछ किया ना, वो उनके ऊपर आ गया। मतलब इवन हम किसी का बुराई भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो पाप है ना, वो सब कुछ हमारे ऊपर आ जाता है। इवन हम अगर उनके बारे में कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये माता जी बता रहे थे कि हमें इवन किसी के बारे में कुछ बुराई, अगर वो कोई किसी के अंदर कुछ भी है, वो हमको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे से कुछ भी। तो ये पूरा पाप जो घूम फिर के आ गया वो, और हम ये सब बोलते हैं ना कि अरे ये तो इतना ज्यादा मतलब पाप किया है, इतना कुछ किया है, बट इनको तो कुछ है ही नहीं, वो तो एकदम अच्छे से मतलब जी रहे हैं, बोलते हैं ना एकदम खुशी खुशी जी रहे हैं। तो माता जी बता रही थी कि वो खुश इसके लिए है क्योंकि जो वो इतना पाप कर रहे हैं उनके बारे में दुनिया सब कुछ, मतलब सभी लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका पाप तो जो डिस्कस कर रहा है वो ले ले रहा है। मतलब जो उनके बारे में बातें कर रहा है, उनका पाप वो ले ले रहा है। तो फिर वो तो खुश ही रहेंगे ना, वो तो पाप करेंगे तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पाप तो पूरा ट्रांसफर हो गया है। तो ये एक माता जी ने मुझे, मतलब मैंने उनका क्लास सुना, तो ये मुझे वहां से पता चला, तो मैंने वो शेयर किया यहाँ पे। और फिर माता जी बता रहे थे कि ऐसे ही हमारे आचार्य भी हैं, जो हमारे गुरु महाराज भी, वो भी बोलते हैं ना कि एक जो भक्त होता है ना, वो बहुत ही सहनशील होता है, बहुत ही हम्बल होता है, एकदम नर्म दिल का होता है, कि अगर कोई भी उनको कुछ बोल भी दे तो भी वो एकदम चुपचाप सुन लेता है। तो जैसे हम अभी देख रहे थे कि अमित प्रभु ने भी एक ईश्वरलाल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शेयर किया था लाइन, कि वो जब एयरपोर्ट पे उनको महाराज को कोई एक थप्पड़ मार देता है, तो महाराज बिना कुछ किए वो कहीं जाते रहते, चले जाते, बट वो बार बार वो जो उनको थप्पड़ मारते उनके बारे में पूछते रहते कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको अच्छा, मतलब आपके साथ वो लोग भक्त जो है मेरे, वो अच्छे नहीं करेंगे। मतलब उनको कितना फिक्र रहता है, इवन वो मारे रहते हैं। मतलब इसलिए ये भक्तों का मतलब बोलते हैं ना साइन है, जो प्योर भक्त होते हैं ना, वही भगवान के पास वो सब मतलब पास रहते हैं एकदम। तो ये माता जी ने वो जो मैगजीन था उससे भक्तों की निंदा के ऊपर, तो वो एक शेयर किया। और इसमें एक टॉलरेंस के ऊपर था। तो मैंने इस देश प्रेम विलास प्रभु जी का एक क्लास सुना, तो उन्होंने एक भगवत गीता का ये किया था, श्लोक कोट किया था। मत्र स्रपस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमा अगमा पियस नित्यास्तम तितिक्ष्वा ब्रह्म भारता। तो यहाँ पे जो ये श्लोक भगवत गीता का है ना, इसमें हमको प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो एक भक्त होता है ना, उसका टॉलरेंस लेवल कैसा होना चाहिए। लाइक कि कोई उनको टॉलरेंस कर रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, कि एक जैसे बोलते हैं ना, सुख दुख हमारे लाइफ में आना आते रहना चाहिए, तो हम अप डाउन हो जाते हैं, बट वो अप डाउन नहीं, हमारी लाइफ में जैसे सुख दुख आते रहते हैं ना, हमको एकदम स्थिर बन के रहना चाहिए।
तो वैसे ही हमें एक भक्त जो है ना, उनका टॉलरेंस लेवल भी होना चाहिए कि कुछ भी हो, कि अगर कोई अभी जैसे मैंने करेक्ट, जो हमको करेक्ट करे, तो जो हम अगर करेक्ट करेगा तो हमारे मन में भी बहुत कुछ आएगा, तो वो टॉलरेंस हमको उस करेक्टनेस से मेरा वॉइस कट हो गया था क्या एक्चुअली? नहीं आ रहे हैं बराबर। अच्छा, ओके 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 ओके। तो हमें वो टॉलरेंस लेवल कैसे होता है, जो हमें कोई करेक्ट करता है तो उसके लिए हमको एक टॉलरेंस लेवल होता है। तो इसमें जो प्रभु जी ने भगवत गीता का कोट किया ना, कि प्रभु जी बता रहे थे कि जो एक वृक्ष होता है ना, तो एक वृक्ष से भी ज्यादा एक भक्त को सहनशील होना चाहिए। इवन वो वृक्ष, वो जो पेड़ रहता है, ट्री रहता है, उससे हम क्या क्या लेते हैं, उसके फल्स फ्रूट्स लेते हैं, उसके लीव्स भी लेते हैं, इवन उसके डंठी को भी नहीं छोड़ते, वो भी हम अपने मतलब के लिए उसको भी यूज कर लेते हैं। इवन अगर हमको जरूरत पड़े तो हम उसको कट करते हैं, कट करने के बाद फिर भी वो वृक्ष क्या बोलता है कि आप थक गए हो तो आप थोड़ा मेरी छाया के अंदर उसको थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर वापस से कट कर लेना। मतलब आप जब अगर ठीक हो जाओगे तो वापस से कर लेना। मतलब तो इसमें प्रभु जी मतलब बता रहे थे, ये जो भगवत गीता का भी जो श्लोक 2.14 कोट किया, इसमें भी प्रभुपाद में बताते हैं कि हमें एक विंटर और समर के सीजन के जैसा हमें हमारा टॉलरेंस लेवल रहना चाहिए। कि एक भक्त जो है ना, उसको हमेशा स्थिर, मतलब एक ही लेवल पे होना चाहिए उनका। उसको सब कुछ मतलब दुख और सुख आते रहना चाहिए, बट उसको उसके भक्ति से कभी भागना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार इस होलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का भी क्लास सुन रही थी, तो उसमें भी महाराज बता रहे थे कि जो एक भक्त होता है ना, वो उसको ना वृंदावन के जो वृक्ष है ना, उसके जैसा होना चाहिए। वृंदावन के वृक्ष बोलते हैं ना बहुत सारे, एक तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे, तो एक वृक्ष है जो 500 साल से भी है, वो वही वृक्ष ही है। तो 500 साल पहले तो हम लोग नहीं थे, बट जो अभी चैतन्य महाप्रभु थे, और महाराज भी बता रहे थे कि जो वृंदावन के जो वृक्ष है ना, वो आप उनसे जाके मतलब बोलते हैं उनको, हमको धन्यवाद प्रणाम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे ही स्थिर है। उनके कितने सारी बारिश आई, सारे सीजन चेंज हुए, वो कितने बार टूट भी गए, और कितने लोगों ने उनको बोलते ना, अभी तो वहां पे कितने सारे मतलब फार्म्स बन गए, सब कुछ हो गया, बहुत डेवलप हो गए। पहले तो एकदम बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा पूरा एकदम खंडर था, मीन सिर्फ वृक्ष ही थे और कुछ नहीं था जब भी वृंदावन था। तो वो बहुत सारे वृक्ष है उनसे, और उनको ही सब कुछ पता है। उन्होंने कृष्ण बलराम की लीला देखे, जब कृष्ण गैया चराने जाते थे तभी भी वो वृक्ष थे, तभी वो उनके साथ खेलते थे, वो उनके ऊपर जाके फल फ्रूट्स खाते थे। तो महाराज भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक जो भक्त होता है ना, उसको हमेशा वृक्ष की तरह ही सहनशील होना चाहिए। कि कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जो भी आए, मतलब कितना भी कुछ आए, हमें हमेशा एक हम्बल होना चाहिए। और हमेशा भक्तों के संग होके हमें उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी हमें कुछ बोल रहा है, इवन हमारा मिस्टेक नहीं भी है, तो भी हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं उसको सुधार करूंगा। ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है, हाँ मैंने सुन लिया। मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई हमारा सीनियर हमें कोई करेक्ट भी कर रहा है, तो हम उस समय बोलते हैं ना, हमारे मन में तो आ जाता है कि नहीं आप मतलब सही नहीं बोल रहे, बट हम उसको फेस पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि बोल देते कि ठीक है हम करेक्ट। बट हमें हमेशा से हम्बल होना चाहिए। और इवन कोई हमारा सीनियर हमें गाइड कर रहा है, कोई करेक्ट कर रहा है, तो हमें हमेशा उसको मतलब ये एज अ इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि ठीक है, मेरे में कुछ मिस्टेक है तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया है। और इवन अगर वो नहीं भी कर रहे तो हमें हमेशा उनसे पूछना चाहिए। जैसे हम अपने गुरु महाराज से हमेशा पूछते हैं कि अगर गुरु महाराज मैं क्या करूं, मतलब मेरा आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो वो हमें हमारे सीनियर से भी हमेशा पूछते रहना चाहिए कि प्रभु जी आप मुझे मतलब इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे और भक्ति में कैसे बढ़ सकता हूँ। इवन हम बड़ा प्रॉपर भक्ति भी कर रहे हैं, तो और हम उसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इतना ही यहाँ पे बता पाई हूँ। और एक टॉलरेंस के ऊपर जो बता रहे थे ना कि हमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीला प्रभुपाद, जो हमारे आचार्य हैं। तो जो
प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर जो टॉलरेंस को बोलते हैं ना हैंडल कर लेता है, वो भगवान भगवान के भक्त एकदम भगवान के पास होते हैं। तो हम शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रभुपाद मतलब वो बोलते हैं ना कि ऑयल के कार्गो में वो 40 रुपीज अननोन शहर में गए, और वहां पे जो न्यू मतलब वहां पे लोग कितने दिन तक बोल रहे थे प्रभु जी की नहाए नहीं थे, और मतलब वहां पे मतलब कैसे कैसे लोग थे, फिर भी उनके बीच में रहे, उनको हार्ट अटैक भी आए, तो भी वो 40 रुपीज मतलब $40 था कि 40 रुपीज था, मुझे वो उतना याद नहीं है, बट वो लेके वहां पे गए। और फिर उन्होंने अपना बोलते हैं ना टॉलरेंस लेवल और अपनी सहनशीलता इतना अच्छे से उन्होंने बनाए रखा कि आज हम लोग ये इस्कॉन देख रहे हैं। किसी कोई भी ऐसा आज नहीं रहेगा पूरे वर्ल्ड में, इस्कॉन सबको पता होगा कि इस्कॉन है। और भगवान ने स्वयं राधा कृष्ण ने स्वयं प्रभुपाद का बोलते हैं ना उनको इतना अच्छा बोलते हैं ना कि दिया है, दर्जा दिया है कि आज सभी लोग प्रभुपाद का बोलते हैं ना प्रभुपाद की वर्शिप कर रहे हैं, उनसे सब सीख रहे हैं, उनके सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि टॉलरेंस लेवल ऐसा होना चाहिए ना कि जो खुद मतलब सब कुछ सहनशील कर ले तो भगवान स्वयं उनका बोलते हैं उनकी हेल्प करते। तो वैसे ही भगवान ने शिला प्रभुपाद का हेल्प किया और उनके साथ रहे, तो आज इतने सारे इस्कॉन के सेंटर्स खुले हैं, इतना इस्कॉन का प्रचार हो रहा है, इतने सारे भक्त बने, हमारे गुरु महाराज लोग हैं इतने सारे। तो अभी मैं बस इतना ही बोल पाई। हरे कृष्णा, मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था अभी प्रोग्राम, और अगर किसी का कुछ कमेंट्स या कुछ ऐड करना है तो वो कर सकता है।